Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. I'm Vishali and today I'm here with one of the most requested videos for now. That is what we should do for serious examination. Serious 1 2023, 6 months are there. How to be consistent, what should be the timetable and how exactly I should study. Okay, so I am going to reveal the biggest thing that I've done till now on this YouTube channel. That is Brahmastra of clearing the CDIS examination. And believe me on this, I do understand there are a lot of arts के subject and it's so hard. Paper में कुछ याद नहीं रहता है. But I'll share with you what to study and how to study it scientifically so that you remember everything that you have read in the examination. Okay? Let me tell you my own success story. So I have been All India Rank 26 CDS to 2018. Okay, and this was my first attempt and I have secured this rank by studying only for 2 months. If I can do the same in 2 months, why cannot you? You too can do it. You have 5 to 6 months in your hand. When it comes to Vaishali ma'am, like I need to answer this, like I need to ask this question actually. Like how ma'am do you know things so accurately? Like how? Now I am ready to discuss all my secrets, but only if you are here to promise me that you will give consistently 2 hours every day. If you can promise me that, let's move ahead with the video. जब मेरी 5 से 6 20 मिनट की वीडियो से आपके सारे सीडीएस में करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जब मेरी इतनी हाई एक्यूरेसी है कि आप लोग कहते हैं मैम आपने यूपीएससी का एग्जाम जो है वो लीक कर दिया है, जब इनसाइट एसएसबी के 1 महीने के बैच वाले बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते हैं, सो क्या ये चीज आपको मदद नहीं करेगी? आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज 3 फंडामेंटल्स ऑफ ब्रह्मास्त्र. The first is 20 is to 80 rule. Okay, this is basically study the examination before studying for the examination. The second one is spaced revision and the third one is active recalling. कुछ समझ नहीं आया? It is okay. ये वीडियो इसी सबको समझाने के लिए है. So let us, without wasting any more time, jump right into the video and let's plan how to get your name in the list of CDS 1 2023. The first issue is that you don't see what comes in the exam and directly pick up the books. Instead, the first thing that you should be doing is study the examination before studying for the exam. Okay, now let us understand why to do so and how to do so. A question may be arising that why everybody asks to study previous year questions firstly. देखो previous year questions कैसे help करते हैं? First thing is it helps you to understand your strengths. As soon as you see the paper, you understand कि भाई मेरे को आ रहे हैं समझ नहीं आ रहे questions. मुझे physics के questions solve हो रहे हैं because मैं science background से हूँ. मेरे से bio के हो रहे हैं maybe because I took a medical during 11th and 12th. Or maybe I'm able to do chemistry. Maybe I'm able to do history because मेरे पास history का जो है graduation में subject रहा है. So there can be any of these cases. सेकेंड थिंग इज यू गेट टू नो योर वीकनेस. आपको ये समझ आता है कि मेरी वीकनेस क्या है, क्या इस पे काम करके फायदा होगा. जैसे आपने अगर इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी लेकिन अब आपको बोलें कि आपको पूरी इकोनॉमिक्स करनी है, बट क्या ये यूजफुल होगा? नहीं होगा यार. हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल टू यू? हार्डली 10 क्वेश्चंस इज व्हाट यू गेट इन द एग्जामिनेशन. यू आर वेस्टिंग योर 2 to 3 months. जो बच्चे ने 11th और 12th में इतनी मेहनत लगा के इकोनॉमिक्स सीखी, आप क्या सोचते हो आप 2 महीने में बहुत उसमें मास्टर्स कर लोगे? और कर भी लोगे तो 10 क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा? एट द सेम टाइम अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे एफर्ट लगाओगे तो अगर आप 15 क्वेश्चन करने वाले थे आप 20 क्वेश्चन कर लोगे एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर हियर, राइट? The third thing that is the most important thing is, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, 20% of your syllabus leads to 80% of the questions in the examination. Now, there is this 20%, ये आपको कैसे पता चलता है? By understanding what comes in exam. टॉपिक्स के थ्रू पता चलता है. एंड प्लीज टेंशन मत लो, ये मेरा काम है. अभी मैं आपको समझाती हूँ दैट हाउ टू गेट एन आइडिया विच टॉपिक्स आर टू बी रेड. इवन जो आपके वीक एरियाज हैं, जैसे अगर आप लोगों को हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन डू एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन इवन आउट ऑफ दीज टॉपिक्स बाय अंडरस्टैंडिंग कि क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ऑल्सो वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप ना एक बहुत गलत चीज अपने दिमाग में रख के चलते हो दैट हमें इस एग्जाम के अंदर, ये यूपीएससी का एग्जाम है, आप यूपीएससी को चैलेंज करने लग जाते हो दैट आई विल मेक श्योर आई विल गेट एटलीस्ट 95% मार्क्स. भाई
ना ही आपके 10th के बोर्ड्स हैं, ना ही आपके 12th के बोर्ड्स हैं। ये क्या है? दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यूपीएससी ऐसा पेपर सेट करती है कि आप भूल ही जाओ तो अच्छा है। और आप लोगों की एंग्जाइटी कैसे डेवलप होती है, आप ना प्रेपरेशन कर लेते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठते हो और बोलते हो मैम सारे क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। डू यू नीड कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो? नहीं चाहिए। आई विल टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू डू। योर कॉम्पिटिशन इज विद द पीपल, नॉट द एग्जाम। टॉपर के मार्क्स कितने आते हैं यार? 40 मार्क्स जो है, 40 से 50 टॉपर के मार्क्स आते हैं जीके में, ठीक है, 100 में से। तो अगर आप 40 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, आप ऑलरेडी टॉपर वाली लिस्ट में हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एंड इट इज नॉट अ बिग डील। आई टेल यू हाउ टू गेट दीज 40 प्लस मार्क्स ऑल्सो। ओके, अगला जो है क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करूं मैं एग्जाम के अंदर? देखो, कितने नंबर चाहिए तुम्हें? 70 प्लस मार्क्स अपने इंग्लिश में ले आना, ठीक है, 40 प्लस मार्क्स अपने जीके में ले आना। दिस इज ऑल यू नीड। और इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है तो वो मेरे हिसाब से बेवकूफी है, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का हमारे पास लिटरली टाइम नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम बचता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास बचता है तो ऐसी अपनी स्ट्रेंथ्स पे लगाओ कि यार हाँ, ये जो 40 प्लस मार्क्स है ना, ये 45 बन जाए, ये जो 70 प्लस मार्क्स है ना, ये 75 बन जाए। बस इस पे ध्यान रखो, ठीक है। फाइनली हमें क्या है, कट ऑफ क्लियर करनी है। ओके, मैथ्स भी हमें ऑफ कोर्स उस पर भी एफर्ट्स लगाने इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमए आईएनए, बट एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट ओटीए हियर। ओटीए की बात करूं तो अगर इतने मार्क्स भी लेके आ रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू नीड नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। ओके, और जब अपने दिमाग में बिठा लोगे कि मुझे 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने आप जो वो एंग्जाइटी आती है ना आपको क्वेश्चन पेपर देख के कि मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बिकॉज दिमाग में ऑलरेडी ये चीज आपकी होगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन करने हैं कि मेरे 40 मार्क्स आ जाएं। दैट इज इट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। अब हम बात करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स हाउ टू डू दिस। आई विश हम सब लोग एक जैसे भगवान ने बना के भेजे होते तो सबके लिए इस हाउ का आंसर एक जैसा होता, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। इसी वजह से हम बेस्ड अपॉन क्वालिफिकेशन सबकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। मतलब अगर आप लोगों ने कुछ अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। और अगर सेम अपने फ्रेंड से पूछ के, अपने सीनियर से पूछ के उनकी स्ट्रैटेजी लगाओगे तो डायरेक्ट फेलियर मिलेगा। मुझे पता है सब लोग जाते हैं पूछते हैं कि प्लीज भैया दीदी या मैम सर बुक्स बता दो कौन सी पढ़ी थी, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क इज बुक लिस्ट क्या है। ओके, एंड ये क्वेश्चन सबसे आखिरी में पूछना होना चाहिए, बिकॉज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो बुक लिस्ट किस लिए पूछते हो आप लोग? ताकि ये पता लग जाए कि क्या पढ़ना है। लेकिन क्या पढ़ना से इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ना है, और ये मैं आपको अगली जो चीज डिस्कस करने वाली हूं दैट इज स्पेस्ड रिविजन और एक्टिव रिकॉलिंग, वहां समझाऊंगी कि कैसे पढ़ना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बुक लिस्ट के बाद जो आते हैं, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि काश सब लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, बिकॉज सभी लक्ष्मीकांत ही तो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ही तो पढ़ रहे हैं, सब लोग जानते हैं यार बुक लिस्ट क्या है। बट हाँ, मैं आपके साथ फिर भी डिस्कस कर लूंगी अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है तो, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत अपनी किसकी, पॉलिटी की, तो सब लोग यही तो पढ़ रहे हैं। तो फिर अलग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो अब चीज आती है दैट इज कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो 20% टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो हाउ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी, उसके बाद बुक लिस्ट और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज दैट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन योर क्वालिफिकेशन। सो हमें क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। 100% सिलेबस करने का ना हमारे पास टाइम है ना इतनी ज्यादा एनर्जी है। आई नो लॉट ऑफ यू आर गोइंग फॉर जॉब्स, लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन कॉलेज, बहुत सारी और भी चीजें हैं। और सिर्फ सीडीएस नहीं है, इफ कैट की भी प्रेपरेशन करनी है, एसएसबी की भी करनी है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। आई डोंट थिंक दैट होल डे यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग सीडीएस, राइट? सो लेट्स बी स्मार्ट हियर। ये जो टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं ये बहुत लोगों ने फॉलो की है, एंड वन ऑफ माय बैच स्टूडेंट्स उसने खुद से की है। हिज नेम इज तनुज। लेट मी डिस्कस दैट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी 3 सब्जेक्ट्स जो है उन्हें पिक करना है। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस उठा लो, ठीक है। करंट अफेयर्स सबको करने हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मिसलेनियस, डिफेंस और करंट अफेयर्स, यहां पे आपको 20 से 23 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा ईजी हैं
और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। यूट्यूब जिंदाबाद, इनसाइट एसएसबी का, उसके अलावा तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है, बस ये कर लेना, ठीक है। साइंस कर लो, उसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट पिक कर लो, सबसे इजी रहता है यूजुअली पॉलिटी, बिकॉज इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पता होता है कौन से एरिया से क्वेश्चन आने, ओके। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, हिस्ट्री में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ज्योग्राफी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, उसके साथ करंट अफेयर्स उठा लिया या पॉलिटी देख लिया, ठीक है। साइंस का जो 9th और 10th वाला है वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो पिक 3 एंड डू मैक्सिमम एफर्ट्स इन इट, जैसे कि आपने 3 उठाए, इसमें मैक्सिमम एफर्ट्स करो, और उसके बाद कुछ छोड़ो मत, ठीक है, थोड़ा बहुत सब कर लो। दो आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू डू एवरीथिंग, बट देर इज अ केस जहां पे पीपल हैव जस्ट डन 3 सब्जेक्ट्स एंड हैव गॉट 40+ मार्क्स। अब उसके बाद जो 2-3 सब्जेक्ट बचते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट तनुज। सो तनुज इज वन ऑफ माई CDS to 2020 GS कोर्स का स्टूडेंट है, ओके, एंड ही हैज क्लियर्ड द CDS एग्जाम इन हिज सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था क्लियर, जबकि सब कुछ पढ़ा था, फिर भी क्लियर नहीं हुआ था। नाउ जस्ट लिसन टू व्हाट ही हैज टू से टू यू। About my personal strategy, I am from CBSE board and PCM background, so my English, science and maths were good. I used to spend 1 hour on each subject to brush things up, and then for GS paper I studied from your course. Current affairs were no issue because of your YouTube channel, and then I studied polity from your course, which was easy and understanding, and geography as well. I left history and economics because one, I wasn't interested in these subjects, and second, I didn't think that I should put in this much effort because output was not that much in these subjects, and FCAT was byproduct because my English and maths were good and my reasoning was also decent, so I cleared FCAT as well. आई गेस तुम्हें अब ये बात थोड़ी सी समझ आई होगी, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू से हियर इज, मैंने खुद आई जस्ट डिड साइंस, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, बिकॉज मेरे पास टोटल थे 2 months। दीज वर द मेजर थिंग्स दैट आई डिड बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। पॉलिटी बहुत ईजी लगती थी मुझे, और करंट अफेयर्स में मेरा थोड़ा हाथ अच्छा था बिकॉज मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ती थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ऑल्सो, लाइक आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल टुगेदर। सो दिस वॉज द वन ऑफ द रीजन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर थिंग्स, इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, ओके। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कैसे चलते हैं। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो द सिंपल स्टेप्स. Go to upsc.nic.in, check out the paper and check out the topics that are important thereon. Just write down the topics and make sure that all these topics you check out in the book and accordingly read, and don't waste your time. एंड अगर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी दैट यू गो एंड चेक आउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, सो यू कैन डू जस्ट वन थिंग. ये जो आपका सीरियस वाला कोर्स है इसको जाके एक बार चेक कर लेना. इसमें जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर रखे, आई टेल यू, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी अभी आगे कि किस तरीके से आप टॉपिक्स की लिस्ट देख के एंड अकॉर्डिंगली उसे पढ़ सकते हैं. ओके, देयर आर वेरी स्पेसिफिक एरिया जहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, लॉट ऑफ यू जस्ट कीप वेस्टिंग योर टाइम हियर एंड देयर. 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हो, नहीं जरूरत है. क्वेश्चन कहां से आते हैं? करंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. सॉइल से हर बार क्वेश्चन आता है, कोपन क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट सी दिस वेरी थिंग कि यार कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब पता है कि 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जो आपकी मतलब ज्योग्राफी आती है, मैप बेस्ड आती है. उसके बाद जो जितनी भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज रही है, जैसे मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट ही वीडियो में करेवास डिस्कस किया था, ओके, जो करंट अफेयर्स की थी, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी में वो जो चीज है एक बॉक्स में गिवन है. आप सेकंड वाला चैप्टर उठा के देखना, करेवास क्लियरली बॉक्स में गिवन है. आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, आई न्यू दैट यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने डाली हुई है, इस बार न्यूज में रही है, तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और इस बार आया. ठीक है, करंट अफेयर से इंटर रिलेट करके पढ़ना है. साइंस में, ओ माय गॉड, साइंस इज वन थिंग जहां से आप क्वेश्चन ऐसे विद इन अ क्लिक, जो ये 30 क्वेश्चन है ना, इसमें से एटलीस्ट आप 20 से 25 क्वेश्चन तो इतना इजीली कर सकते हो, इवन इफ यू नो 9th और 10th. ठीक है, दैट इज इट. बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, सारे मैं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ. ठीक है, सो प्लीज यू कैन गो एंड डाउनलोड इनसाइट एसएसबी ऐप. वहां पे जाके एक बार ये चेक कर लेना. इस कोर्स के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे है इन सबको. तो देखो, अगर मैं आपको सीडीएस की बात करूं ना, सीडीएस में जो क्वेश्चन आते हैं, एज यू गाइज नो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है. लेकिन क्या जो ये सारे क्वेश्चंस हैं
एग्जैक्ट सेम बुक से लोग बाग पढ़ रहे हैं, दैट इज आपकी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एनसीईआरटीज, लेकिन हर एग्जाम की प्रेपरेशन का तरीका अलग अलग है। व्हाई इज इट डिफरेंट? देखो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाती हूँ सीडीएस और एफकैट का। सीडीएस में जो क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड आता है, पहले एफकैट में नहीं आता था, एफकैट में भी स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गया है। लेकिन क्या ये एग्जाम अलग अलग है या फिर भी सेम है? बिल्कुल अलग है। अभी भी जो स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है ना, सीडीएस क्या है, इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस पूछता है। वो ये देखता है आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, क्या आप चीजों को इंटर रिलेट कर पा रहे हो, आपकी दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट है कि नहीं है। एफकैट क्या देखता है कि अच्छा पहले अगर जो एक क्वेश्चन आता था ना एमसीक्यू, जो लोगों को लगता था अरे ये तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 पूछ लिए। जैसे कि कुषाण का फर्स्ट रूलर पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद आपसे अकबरनामा के बारे में पूछ लिया, मतलब अलग अलग टाइप की चीजें पूछ ली। लेकिन एट द सेम टाइम जो सीडीएस करता है ना, अगर वो करेवास के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो पहले करंट अफेयर का डालेगा, उसके बाद पूछेगा ये करेवास क्या है, ये बने कैसे थे, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को इंटर रिलेट करवाता है। तो अलग तरीके से पढ़ना है हमें हर चीज को, ठीक है। एफकैट को हमें रटने की जरूरत है, एट द सेम टाइम सीडीएस के टाइम हमें समझने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। देखो, फॉर पॉलिटी यू जस्ट हैव टू डू लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसे पेज टू पेज नहीं पढ़ना है कि आपने फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया और लास्ट पेज तक पढ़ते चले गए, यूजलेस रहेगा। देयर आर ओनली 20 वीडियोस इन आवर कोर्स, अगर आप जाके चेक करोगे तो, ठीक है, और हार्डली कितने कितने मिनट की है, 9 मिनट की, 10 मिनट की, 22 मिनट की, 16 मिनट की। एक बार टाइम देख लेना, 44 मिनट्स फॉर होल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कैन यू इमेजिन दैट। बेसिक स्ट्रक्चर 18 मिनट में। इसके अंदर जो चीजें हैं ये सिर्फ यही टॉपिक्स करने, इवन अगर आप ये बुक उठाते हो एक बार टॉपिक्स चेक कर लेना फ्रॉम आवर कोर्स एंड जस्ट चेक इट आउट, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और इनको पढ़ना कैसे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, कुछ भी कोर्स ले रखा है, कोई भी बुक्स अगर आपके पास है, थोड़ा सा अगर इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इफ यू इन्वेस्ट इन दिस कोर्स, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल गेट द क्रिस्प मटीरियल। पढ़ लो खुद, लेकिन कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको यहां से पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज साइंस। देखो, साइंस में अगैन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 9th और 10th से भी अगर कर लोगे मोर देन इनफ है, उसके अलावा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर 11th-12th के लेवल पर जा सकते हैं, बट वहां से मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जैसे वर्क, एनर्जी एंड पावर, वेव्स एंड ऑसिलेशन, टोटल आई गेस 8 वीडियोस हैं आपकी जो फिजिक्स है उसके अंदर, एंड दिस इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपके क्वेश्चन ही नहीं आते इससे बाहर फिजिक्स के, ठीक है। एंड हमने बेस्ट चीज क्या की है, मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। अब मैं आपको एक बार एक्टिव रिकॉलिंग समझाती हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्रस। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्या होता है, आपको जो चीज याद नहीं थी वो याद हो जाती है। हाउ? बिकॉज आप कोई मिस्टेक करते हो। देखो, कुछ भी चीज जो आपने सही की वो आपको याद नहीं रहती, यूजुअली मिस्टेक्स याद रहते, इसलिए लोग कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, जैसे आप जो भी रिविजन टेक्निक्स बनाते हो अपनी, मैं आपको वो भी समझाऊंगा कैसे बनाना है। तो आपने टाइम टेबल सेट कर लिया कि मुझे इस दिन, जैसे 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद ऐसे से रिवाइज करना है टू रिमेंबर थिंग्स, ओके। सो जब आप रिवीजन प्लान करते हो तो आप क्या करते हो, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है आप बुक खोलते हो, जो भी वीडियो जिससे रिवाइज कर रहे हो आप उसको खोलते हो और आपको उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। ऐसे रिवीजन नहीं होते। रिवीजन कैसे होती है कि आप लोग क्या करो कि आपने जैसे ये चैप्टर पढ़ा तो उसमें से आपने 7-8 क्वेश्चंस बना लिए अपने लिए, जैसे कि व्हाट आर करेवास, ठीक है, वेर आर करेवास फाउंड, हाउ दे वर फॉर्म्ड, ओके। सो इस तरीके की जो चीजें आपने बना ली और आप अपने आप से जब आप रिवीजन करने बैठो तो इनको उठाओ और अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जो चीज समझ नहीं आ रही उसको वापस से बुक में जाके देखो या वीडियो में जाके देखो। इसको बोलते हैं एक्चुअल रिवीजन, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, और यही सारे टॉपर्स यूज करते हैं जितने भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। मैक्सिमम पीपल जो 95% के आसपास लाते हैं मार्क्स, वो हमेशा यही फॉलो करते हैं टेक्निक। दिस इज द टेक्निक दैट आई ऑल्सो यूज टू फॉलो एंड इट हेल्प्ड मी सो मच, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जितने भी जैसे मोशन वाला आपका चैप्टर है तो इसमें मैंने मुश्किल से 10 क्वेश्चन बनाए हैं एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड, ओके। जितनी भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है इस 10 क्वेश्चन में फिक्स्ड है। आपको क्या करना है, आपने ये चीज पढ़ी और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कर लिया, मतलब जो आपको क्वेश्चन फॉर्म करनी थी वो मेहनत मैंने कर ली है और आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपकी एक्टिव रिकॉलिंग होती रहेगी। हर बार जब भी आप रिवीजन करोगे आपको ये सारी वीडियोस दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो। जो चीज याद नहीं आ रही जाके वीडियो में एक बार चेक कर लो, दैट इज इट। और आपको हर सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ना है। दिस इज नोन एज एक्टिव रिकॉलिंग, ओके।
नेक्स्ट चीज आती है हिस्ट्री एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्लेस। ठीक है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, आपका अगर तुक्का लग गया तो भाई बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और मैक्सिमम एफर्ट्स डालो मॉडर्न हिस्ट्री में, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आजकल फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ओके, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मास्टर्स भी कर चुके होते हैं ना, इवन पीएचडी कर चुके होते हैं हिस्ट्री में, उनके लिए इंटर रिलेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इतने टफ क्वेश्चन पूछने लग गए। मतलब ऐसे ऐसे नाम पूछ लेते हैं जो आई गेस पूरे सत्याग्रह मूवमेंट में सबसे आखिरी में होंगे, ऐसे भी नाम पूछ लेता है आजकल सीडीएस। ओके, बट कई बार क्या होता है कि पॉलिटी बहुत ज्यादा टफ कर दी एकदम से और हिस्ट्री बहुत इजी दे दी है ना, हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि बहुत इजी है। तो हम हिस्ट्री को कंप्लीटली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ वही चैप्टर्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये स्पेक्ट्रम बुक पढ़ रहे हो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थीम्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम उठा लेना फॉर मॉडर्न। इसमें क्या करना है, अपेंडिसेस करके ना आखिरी में एक सेक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स गिवन है, पहली बात तो कि जो मूवमेंट्स थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर्स गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी मूवमेंट्स क्रिएटर्स थे उनके नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको एक समरी देखने को मिलेगी, जैसे खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग। ओके, कुछ भी 3 डिमांड्स क्या थी, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था, नागपुर जो कांग्रेस सेशन था वो कब हुआ था, उसका मेन चीज क्या थी, तो समरी में ये सारी चीजें गिवन होती है। तो अगर आप समरी अच्छे से कर लो, अपेंडिसेस में अगर आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लो, क्रोनोलॉजी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखो, जैसे ये ना विद इन चैप्टर्स ऐसे क्रोनोलॉजी होती थी, ये ऐसे आपको याद होनी चाहिए कि अगर 1800s में ये हुआ था, उसके बाद 1902 में ये हुआ था, 1907 में ये इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। मतलब आपको क्रोनोलॉजिकली याद होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले हुई थी या खिलाफत मूवमेंट पहले हुई थी, चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था, क्या रीजन रहा था। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर मैनर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से इस बुक को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं ये 2। ठीक है, ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है और ये आपकी 12th की एनसीईआरटी है। 6th से लेकर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, सिर्फ 11th 12th पढ़ लेना। और 12th में भी ये जो 2 बुक्स है ना, ये ओवरली इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी मैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 बुक्स हैं, ये अच्छे से कर लेना। इसके अलावा ना एक मैंने जीसी लियोंग भी पढ़ी थी, दैट वाज अ वेरी नाइस बुक एज पर टू मी। दिस आई रेड व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। ओके, वाज वेरी हेल्पफुल। लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, बट आई डोंट थिंक अभी आपको रिक्वायरमेंट है इतनी ज्यादा। अगर आप बेसिक पढ़ रहे हो, अगर आपका ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो आई सजेस्ट कि सिर्फ ये 2 बुक्स भी अच्छे से कर लोगे तो काफी है। और इसके अलावा मैप्स पढ़ लेना और उसको करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ना, करंट अफेयर्स जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इकोनॉमिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे 10 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम जो कर्व्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको 100% करने ही करने चाहिए। एक आता है 5 ईयर प्लान, हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सेंसस वाला क्वेश्चन, इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आने ही आने। उसके बाद जितने भी कर्व्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एंजल कर्व, ठीक है, आर्थर लाफर कर्व, उसके बाद लॉरेंस कर्व, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है कर लेना। इफ यू चेक माई कोर्स, उसमें एक रिविजन वीडियो है ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो आई गेस 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो है, एंड दिस इज मेड बाय तनिका मैम। तनिका मैम इज नाउ इन ओटीए। ओके, एंड ये उनकी एक बेस्ट टेक्निक थी इकोनॉमिक्स के लिए। उन्होंने क्या करा था, 1.5 आवर में उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करा दिए थे बच्चों को, एंड उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली उस वीडियो से थे। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही है जो आपको करने की जरूरत है, सिर्फ उनको कर लेना, मोर देन इनफ है। जो हमारे कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिविजन वीडियो में ऐड होने वाली है, सो टेंशन मत लो, ये ऐड हो जाएगी, उसको अच्छे से कर लेना। बट हाँ, अभी बेसिक्स करते चलो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए बैठे रहोगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं 4-5 वीडियोज में कवर कराने वाली हूँ आपके उसमें कोर्स में, वो करनी ही करनी है आपको, उसके साथ साथ ये भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है करंट अफेयर्स। गाइज, इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर इट्स करंट अफेयर्स। पीपल कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड डिस्कस अबाउट हाउ एवरी करंट अफेयर वॉज फ्रॉम वो 5 से 6 20 मिनट वाली वीडियो ऑफ इनसाइट एसएसबी। तो तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका जो पार्ट 1 है दैट इज अप, जाओ जाके देखो और ये आप देख सकते हो। सो ऐसा लग रहा था पेपर आपने ही सेट किया है, सारे क्वेश्चन एज इट इज आए थे। देखो करेवा वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वो भी
करेवा, कोरल रीफ, ग्रे लिस्ट, मतलब समर्थ पोर्टल, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। उसके बाद ये बच्चा जो था ये तो आखिरी मोमेंट पे यूट्यूब की वीडियो देख के गया था। वो होते नहीं है कुछ बच्चे जो आखिरी के 2-3 घंटे में बैठ के वीडियोस देख रहे होते हैं, ये उसी में से एक था और इसको सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिल गए। सो गाइस तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, 5-6 महीने अच्छे से जो जो वीडियो डालती जाती हूँ उसको देखते रहो। और मैं तो महीने में एक वीडियो डालती हूँ CDS की, करंट अफेयर्स की, बस उसे कर लो, मोर देन इनफ है। लास्ट में 2 से 3 आपकी डिफेंस वगैरह वाली, स्पोर्ट्स वाली वीडियो रिलीज करूंगी, मुश्किल से आधे घंटे वाली, उसको पढ़ लेना। उसके अलावा तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। जो रोज तुम 2 घंटे लगाते हो ना न्यूज़पेपर में, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। एंड नाउ आई नो वन थिंग, लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, मैम आपकी ऑल इंडिया रैंक 26 रही है, मेरे को तो सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ जो भी पढ़ता हूँ, आपको चीज़ें कैसे याद रहती थी? गाइज, इवन नाउ व्हेन आई हैव टू टीच थिंग्स आई हैव टू रिवाइज इट। एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू कीप ऑन रिवाइजिंग स्टफ। कोई भी 100% चीज़ याद नहीं रख सकता है, बट हाँ अपना फॉरगेटिंग कर्व को आगे बढ़ा सकता है। वो मैं समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे पढ़ना चाहिए। एंड दिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक टू रिमेंबर वट एवर यू रीड। इवन इफ यू रीड अ बुक ऑफ 200 पेजेस, यू कैन रिमेंबर इट लाइन टू लाइन। ओके, आप सब लोगों ने आमिर खान को देखा होगा गजनी मूवी में, तो कोई भी फेलियर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ना ही कोई टॉपर चिट्टी रोबोट की तरह होता है। ओके, आपका बस एक डिफरेंस है कि आप जैसे पढ़ते हो उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं, और आप कितने ज़्यादा रेगुलर हो अपनी पढ़ाई को लेके, आप अपनी रिवीजन जो है एज पर टाइम टेबल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और जो मैंने अपने कोर्स में भी टाइम टेबल बनाया वो इसी चीज़ को याद रखते हुए बनाया है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट इज नोन एज स्पेस्ड रिविजन। वॉट एग्जैक्टली इज द स्पेस्ड रिविजन? सो हमारी क्या होता है, दिमाग की ऐसी टेंडेंसी होती है कि आज जो मैंने चीज़ें पढ़ी, चाहे हम कितना भी अच्छे से पढ़ लें, वी आर गोइंग टू फॉरगेट इट इन अनदर 3 days अप्रोक्सीमेटली। ओके, लेकिन अगर हम बार बार उस चीज़ को रिव्यू करते रहे, जैसे कि मैंने आज जो पढ़ा मैंने कल उसको एक बार वापस से रिवाइज किया, और रिवाइज कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बुक उठा के रिवाइज नहीं करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में रिवाइज करो चीज़ों को, ठीक है। एक्टिव रिकॉलिंग करो। उसके बाद मैंने उसको वापस से 1 हफ्ते बाद रिव्यू किया, तो मेरा जो फॉरगेटिंग कर्व है देखो ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। आई नॉट फॉरगेट इट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। और अगर आप इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे, आप चीज़ नहीं भूलोगे, आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक चीज़ याद रहेगी। इस तरीके से इंसान बनाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, बिकॉज हमारी आदत होती है जो चीज़ हम रिवाइज नहीं करते, मतलब हमारे ब्रेन को लगता है ये हमारे लिए कचरा है, लेट्स थ्रो इट आउट, तो वो चला जाता है बिन में, और रिसाइकल बिन से वापस अपने लैपटॉप में, अपनी हार्ड डिस्क में चीज़ लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको बार बार रिवाइज करना है। इसको हम स्पेस्ड रिवीजन बोलते हैं, और इससे हमारी बेस्ट ऑफ मेमोरी एग्जैक्टली लाइक चिट्टी रोबोट डेवलप होती है, ठीक है। नोट मेकिंग भी आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि एक पेज में आपका पूरे के पूरे नोट्स आ गए, दिस इज वन ऑफ माय नोट्स, ठीक है। बस ऐसे ही छोटा सा आपका नोट मेकिंग होनी चाहिए। अगर आप बना रहे हो बड़ी बड़ी बुक्स, इससे अच्छा है बुक्स ही पढ़ लो, ठीक है। बिकॉज लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे ना, तो नोट्स की क्या अहमियत है कि आप जब लास्ट में रिवाइज कर रहे हो, आपके पास 2 पेज या 1 पेज होना चाहिए पर चैप्टर, जब जाके आपके पास 15 पेज एक सब्जेक्ट के हो जाएंगे, और जब आप जाके उससे आखिरी 2 दिन में रिवाइज कर पाओगे। बिकॉज नोट्स का मेन चीज ये है कि आप चीज रिवाइज कर पाओ टाइमली, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम टेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी बेसिस पे टाइम टेबल बनाया है मैंने। सो जिसको भी मतलब ये नहीं पता कि मैं अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं, मैं किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ूं, उसको कितने दिन बाद रिवाइज करूं, तो उसके लिए यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट आवर ऐप। उसमें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टेबल है, उठाओ, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, अपने स्टडी डेस्क पे लगाओ और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है जो टेस्ट सीरीज आपकी इन्वॉल्व है कोर्स के अंदर, वो कैसी टेस्ट सीरीज है, वो इसी बेसिस पे है। जैसे मैंने आपको अगर बायो का एक चैप्टर पढ़ाया, तो कल आप उसको वापस से रिवाइज करोगे, उसके बाद आपका एक साथ जैसे आपने जो भी हफ्ते में पढ़ा उसका आपका टेस्ट होगा पूरी बायो का। उसके बाद मैं आपकी स्टार्ट करती हूँ फिजिक्स, पूरे हफ्ते आपकी फिजिक्स रहेगी, मतलब मी एंड माई टीम, एंड उसके बाद आपका आएगा फिजिक्स का टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने जो यहां पढ़ा था वो वापस से रिवाइज किया, ठीक है। अब क्या होगा, बायो भूलना शुरू कर दोगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री का टेस्ट, एंड फाइनली वंस ऑल ऑफ दिस इज ओवर आपका आएगा वापस से साइंस का टेस्ट, जिसमें बायो, फिजिक्स,
केमिस्ट्री होगी, इससे क्या होगा, एक बार और रिवीजन हो गई। तो आप कितनी बार ऑलरेडी इस चीज को 3 बार रिवाइज कर चुके हो, बिकॉज वीकेंड पे रिवाइज करोगे जब आपका बायो का टेस्ट था, उसके बाद अगले ही दिन आपने रिवाइज किया, और तीसरी बार आपने साइंस के टेस्ट के टाइम पे रिवाइज किया। उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट आपके होने शुरू होंगे तब फिर रिवाइज करोगे। तो क्या चीजें आप भूल पाओगे? नहीं। अगर आपसे रेगुलरिटी नहीं बनती, आपको नहीं पता क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इट इज सो चीप। आपको 24 टेस्ट मिलेंगे, इसी बेसिस पे मिलेंगे, और यहां से बेस्ट पार्ट क्या है, आपको सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सीडीएस में देखने को मिलेंगे, इवन सेम टाइप ऑफ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ कोर्स में एनरोल नहीं करना। और ये जो टेस्ट सीरीज है, इस कोर्स में ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट एडेड है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन भी है, आपके पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। इतना अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो, या फिर आपके पास है बुक्स लेकिन आप समझना चाहते हो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही कुछ 7-8 वीडियोस पढ़ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस नॉलेज लेना चाहते हो, गो फॉर दिस कोर्स। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बेटर देन दिस। चाहे आप कोई भी कोर्स लेके बैठे हो, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप इवन ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, रोज जाते हो, उसके बाद भी मैं बोलूंगी आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट, आई अश्योर यू दिस थिंग, ओके। और इसके बाद 40+ की जो मार्क्स की गारंटी है, ये मेरी है। 40 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। लिमिटेड पढ़ो, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करो, साइंटिफिकली पढ़ो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देते हुए पढ़ो। अवॉइड योर वीकनेसेस, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो। दिस इज ऑल। और इसके बाद अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए इंग्लिश के लिए, बिकॉज इस बार इंग्लिश का थोड़ा ट्रेंड अलग था, तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, इफ यू गाइज वांट अ वीडियो जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने आपको बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाया। बिकॉज जब मैंने प्रेपरेशन की थी ऐसी कोई वीडियो नहीं थी, ठीक है, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन अब यू गाइज हैव मी हियर। सो इफ यू गाइज वांट सेम थिंग फॉर इंग्लिश, लेट मी नो। मैं आपको इंग्लिश की भी एक हेल्प करवा सकती हूँ। देयर इज गायत्री मैम विद अस, शी इज ऑल इंडिया रैंक 24, शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर CDS बैच, वो पढ़ाती हैं, एंड शी इज बेस्ट इन English, and she had been teaching English, and most probably within a year's time she will also, like Tanika ma'am and Shivani ma'am, join OTA. but अभी जितना टाइम है उनका बेस्ट ऑफ यूज करते हैं CDS कोर्स के थ्रू। उसके साथ साथ YouTube पे भी हम चीजें लाते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 15, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी, ठीक है। और बेस्ट पार्ट, इस बार हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी पढ़ाने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड येस, जिसको इंग्लिश का चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो, और फिर आपके लिए एक बढ़िया सी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो एग्जैक्टली लाइक दिस हम लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड गेट एनरोल्ड ASAP। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 500 ऑफ है डायरेक्टली, एंड 6 मंथ्स का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर मैगजीन्स, आपकी रेगुलर हेल्प, आपके डाउट सेशंस, ठीक है, आपके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, उसके बाद रिवीजन वीडियो, सब कुछ इंक्लूड करके सिर्फ 2000 में ऑन ऑफर। इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, जहां पे आपको इवन 40+ मार्क्स की गारंटी मिल रही है। और एक बार जाके हमारा प्लीज इंस्टाग्राम देख लेना, एक बार रिजल्ट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा व्हाट इनसाइट SSB इज, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी।